Good morning, students. Today we are starting a new chapter. This is the refrigeration cycle. The screen shows the syllabus of your chapter, which is starting from simple vapor compression refrigeration system, and then after pressure enthalpy diagram, and then different simple vapor compression refrigeration cycle, and pH and TS diagram, and so on. So let us start with refrigeration cycle. Basically, this cycle is used to use for producing refrigeration effect or say cooling effect, either in AC and refrigeration. So let's start the first topic. It is simple vapor compression refrigeration system. Before that, you have to know there are two systems working in the industry. First one is the VCR system, which is called vapor compression refrigeration cycle, and second one is the VAR system, vapor absorption refrigeration cycle. In both the cycle, there is a only single difference. In VCR system, we are using compressor, and in VAR system, we are using generator. This compressor or generator work as an heart of the body because it ultimately move on the refrigerant throughout the system. So vapor compression refrigeration cycle is most popular and widely used in refrigeration and air conditioning for both domestic and refrigeration purpose. It is generally used for all purpose for small domestic refrigerator to a big industrial air conditioning set. Okay, तो उनका स्टेटमेंट क्या है कि भाई ये जो वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ये जनरली हर जगह यूज़ होता है। आपको याद रखना है कि जब आप इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो आपको स्टेटमेंट देना है कि इन VCR सिस्टम वी आर यूजिंग compressor as a main part. Then we have to use evaporator. Evaporator is nothing but it is the compartment or the space where cooling has to be done. Then after we have to use one condenser. Condenser is a device that can be liberate heat from this refrigerant, and then after expansion wall. Expansion wall are used to um, ultimately reduce the pressure of the refrigerant. For this, there should be one figure. This figure, you have to learn this figure. Let's start the figure. Ultimately started with a compression process because we all know that what is the compressor? The compressor is a device that can be compressed any fluid. Here there are मतलब in general अगर हम जनरल केसेस की बात करेंगे तो जो फ्लूइड्स होते हैं फ्लूइड को कंप्रेस करने के लिए हम पंप यूज करते हैं। सिमिलरली अगर मुझे वेपर्स को कंप्रेस करना है या एयर को कंप्रेस करना है, इन दैट केस वी हैव टू यूज द कंप्रेसर। तो आपने कंप्रेसर यहाँ लगाया तो आपको स्टेटमेंट देना है कंप्रेसर इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू कंप्रेस द वेपर और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही कंप्रेसर में हम पास करेंगे तो कंप्रेसर में पास होने की वजह से क्या होगा, जो रेफ्रिजरेटर है उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ जाएगा। आपको वर्ड याद रखना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों ही बढ़ गए। अब ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर और टेम्परेचर है इसे हम कंडेंसर में डालेंगे। तो आपने देखा ही हुआ होगा कि पीछे आपके जो मतलब आपके घर में जो फ्रिज है उस फ्रिज के नीचे कंप्रेसर लगा रहता है, और कंप्रेसर का जो आउटपुट रहता है वो पीछे जो लंबे लंबे वायर्स रहते हैं उसके अंदर रहता है। ये जो लंबे वायर्स हैं एक्चुअली इसको हम लोग ट्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, कौन सी ट्यूब्स? तो कैपिलरी ट्यूब्स, और मतलब रेफ्रिजरेशन की लैंग्वेज में बोलोगे तो इसे हम कंडेंसर बोलते हैं। तो ये कंडेंसर के अंदर में हम रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराते हैं। रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराने की वजह से यहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस होगा, तो जितना भी हीट है रेफ्रिजरेंट के अंदर में वो हीट जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने की वजह से क्या हुआ,
तो आपका जो प्रेशर और टेम्परेचर, इस जगह पे अगर मैं P2 और T2 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो कंडेंसर में जाने के बाद हमारा प्रेशर तो सेम रहेगा, जो P2 ही रहेगा, और जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होकर T3 पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर 3 हमने वर्ड यूज़ किया, इसलिए हमने T3 लिखा। अब यहाँ से हीट रिलीज हुआ, और हमारा जो अब रेफ्रिजरेंट है, ये रेफ्रिजरेंट जो है वो रिसीवर में जाता है। रिसीवर क्या है, तो इट इज़ अल्टीमेटली एक डोम कह लो, या एक स्टोरेज मीडियम कह लो, क्योंकि यहाँ पे जितना भी रेफ्रिजरेंट आएगा वो इस रिसीवर में जाके स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होने के बाद एज पर योर कूलिंग डिमांड हमारा ये जो एक्सपांसन वॉल है उतना ओपन होगा, और ओपन होने के बाद रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो होगा। ठीक है, तो रिसीवर क्या है, तो ये एक रिसीविंग टैंक है, जहाँ पे अल्टीमेटली पूरा का पूरा लिक्विड जो है, या पूरा का पूरा जो वाटर है, वो रेफ्रिजरेंट स्टोर हो जाए। स्टोर होने के बाद ये एक्सपांसन वॉल में जाता है, जहाँ पे अब ये देखिए, ये जो प्रेशर है, मतलब अब इस पर प्रेशर हाई है, तो ये प्रेशर जो हाई है उसको वो डिक्रीज करने का काम करता है। तो अब जो आपका प्रेशर हुआ एक्चुअली P4 है, ठीक है, और जो आपका टेम्परेचर है, ये एक्सपांसन वॉल के बाद जो कूल हो चुका है, वो आपका T3 रहेगा। या मैं इसको अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये T4 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, केवल प्रेशर चेंज हुआ। बात समझ में आ गई। अब देखो, ये जो ठंडा रेफ्रिजरेंट है, जिसका प्रेशर भी कम है, टेम्परेचर भी कम है, अब ये क्या करता है, इवोपोरेटर के अंदर जाता है। तो इवोपोरेटर में जाने के बाद अब आपने जो कुछ भी यहाँ पे रखा है, वो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, और ये हीट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो ये रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आपने रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराया, रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, तो ये जो हीट जनरेट हो रहा है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अल्टीमेटली वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो आप यहाँ पे देखो, अब आपका क्या होगा, तो यहाँ पे प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब P यहाँ पे 4 रहेगा, और क्या हम कह सकते हैं कि ये P1 और P4 जो है वो इक्वल है। बात समझ में आई? मतलब आप अगर अब इसके पीएच चार्ट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो केवल दो ही प्रेशर पे काम करता है। एक कह सकते हैं इवोपरेटर, और दूसरा कंडेंसर प्रेशर पे, या एक बोल सकते हो कंप्रेशन प्रेशर पे, और एक एक्सपांसन प्रेशर पे काम करता है। ठीक है, अब अब क्या हुआ, तो यहाँ पे जो वेपर लिक्विड स्टेज में था, ये लिक्विड हीट एब्जॉर्ब किया और वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो T1 टेम्परेचर होगा। क्लियर? अब ये T1 टेम्परेचर जो है वो वापस कंप्रेसर में जाएगा, जहाँ पे कंप्रेस होगा, और जो ये साइकिल है वो अगेन एंड अगेन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ें देखो, यहाँ पे आपने जो कंप्रेसर के अंदर से जो रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराया, ये रेफ्रिजरेंट किस लाइन, मतलब किस फेस में था, तो आप बोलोगे सर ये वेपर के फेस में था या गैस के फेस में था। ओके, अब ये गैस या वेपर जो हमने कंडेंसर में डाला, तो कंडेंसर में जाने के बाद वो लिक्विड स्टेज पे आ गया, और ये लिक्विड स्टेज को हमने रिसीवर में स्टोर करके रखा, और ये लिक्विड को जब एक्सपांसन वॉल में डालेंगे, तो ये लिक्विड जो है वो फ्लो के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कह सकते हो कि मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाता है, जो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ कहाँ देखा है, तो बार्बर के पास है सिलेंडर में देखा है, वहाँ पे क्या कहता है, वहाँ पे वो एक्सपांसन डिवाइस रहता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स जो है जैसे आपकी बॉडी, मतलब आपके फेस पे या आपके हेड पे पड़ते हैं, तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है, मतलब उसने क्या किया, आपकी बॉडी से हीट को एब्जॉर्व कर लिया, और यही प्रोसेस अगेन एंड अगेन मूव करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर समझ में आ गई, तो अब आपको वो वर्ड्स को लिखना है। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या यह वर्ड यूज करोगे, तो वेपर कंप्रेशन साइकिल इज अ प्रोसेस थ्रू विच compressor are used for the compression process. Second point में लिखोगे, in this system there are five uh, five main parts are consisting.
पहला पार्ट इवापोरेटर, दूसरा कंप्रेसर, तीसरा कंडेंसर, चौथा रिसीवर एंड फाइव फिफ्थ जो है वो है एक्सपांशन। तो अब कंप्रेसर क्या यूज करते हैं, तो कंप्रेसर इज यूज फॉर द कंप्रेशन ऑफ वेपर और गैस। ठीक है, वेपर और गैस को कंप्रेस करने का काम करते हैं। उसके बाद कंडेंसर के यूज करते हैं, तो कंडेंसर वर्क एज अ हीट एक्सचेंजर दैट कैन बी extracting heat from the refrigerant and flow through the environment। ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है, तो अगर आपके साइकिल मतलब आपके सिस्टम की बात करें, फ्रिज की बात करें, तो वहाँ पे नेचुरल कूलिंग रहती है। और अगर हम बड़े बड़े प्लांट्स या इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो एक कूलिंग फैन लगा रखते हैं, जिसे हम लोग इन फ्यूचर कूलिंग टावर्स। ठीक है, रिसीवर क्या होता है, तो इट इज अ रिसीवर वर्क एज अ स्टोर, और मतलब ये एक वेसल टाइप का होता है जो रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने का काम करता है। ओके, उसके बाद क्या आया, एक्सपांशन डिवाइस। तो ये डिवाइस क्या करता है, तो जो आपके पास लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका तो उसका प्रेशर रिड्यूस करके उसको इवापोरेटर में भेज देता है। और इवापोरेटर क्या है, तो एक्चुअली ये वो स्पेस है जहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, अब पूछोगे कि सर ये एब्जॉर्ब किया जाता है, ये वर्ड समझ नहीं। तो देखो, अल्टीमेटली अगर मैं आपके फ्रिज की बात करूँ, तो आपने क्या किया, ये फ्रिज को ओपन किया। अब ओपन किया और क्लोज किया, मान लो आपने इसके अंदर में एक एप्पल रखा, तो एप्पल क्या करता है, अपना हीट रिलीज किया। अब जब ये हीट रिलीज करता है, तो एक्चुअली इवापोरेटर क्या है, तो ये एक प्रॉपर हीट का एक जिगजैग फॉर्म है, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, अब देखो लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। ये जब फ्लो हो रहा है तो उससे क्या पता चला कि यहाँ पे हीट आया, तो ये क्या किया है, इस हीट को एब्जॉर्ब। अब जब ये हीट को एब्जॉर्ब करता है तो होता क्या है, तो आपने देखा है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जैसे हमारा वाटर है। अब मैंने वाटर को हीट करना चालू किया, तो हीट जब कर रहा होता है तो क्या करता है, आपने देखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक फेस चेंज नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि ये सेंसिबल हीट है। और 100 डिग्री के बाद मतलब टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाता है और केवल फेस चेंज होता है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो लेटेंट हीट है। बात समझ में आई? तो यहीं पे ये भी फंडा यहीं पे यूज करते हैं कि ये जो रेफ्रिजरेंट है, ये क्या करता है, तो ये उस हीट को जो आइदर सेंसिबल हो या लेटेंट हो उसको एब्जॉर्ब करेगा, और वो अपना फेस चेंज करके वापस उस प्रोसेस में मूव ऑन। क्लियर? चलिए, अब अगर क्लियर हो गए हैं, तो अब आपको इसका टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में सेम चीजें हैं। आपने क्या किया, पहले फर्स्ट से सेकंड स्टेज पे गया, तो फर्स्ट से सेकंड क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है, इसलिए देखो टेम्परेचर बढ़ गया, मगर एंट्रोपी कांस्टेंट रह गई। अब यहाँ पे क्या होगा, वो सुपर हीटेड होगा, सुपर हीट होने के बाद उसको थोड़ा सा कूल किया जाएगा। कूल करने के बाद मतलब वो जो प्रोसेस में जाएगा, मतलब आपको जो कंडेंसर में जाएगा, तो कंडेंसर में जाते वक्त भी उसका टेम्परेचर प्रेशर ड्रॉप हो जाने के बाद वो कंडेंसर में गए, जहाँ पे वो कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होने के बाद वो एक्सपांसन वॉल में जाता है। ये देखो एक्सपांसन वॉल में गया, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर कंप्लीटली डिक्रीज हो, और डिक्रीज होने के बाद इवेपोरेटर में जाके वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, और अगेन ये साइकिल मूव ऑन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है, क्या है, तो ये जो आपकी लिक्विड लाइन है, ये आप बोलते हैं ना कि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है। तो जब आप ये याद रखेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो ये जब फर्स्ट में था तो कंप्रेसर में गया, तो कंप्रेसर में जाने के बाद इस ये दो स्टेजेस में चेंज हुआ, एक्चुअली तीन में। दो और तीसरा स्टेज कौन सा है, तो पहला ये है कि ये मतलब इस मीडियम पे आए और केवल ये सैचुरेटेड रह जाए। सैचुरेटेड मतलब जहाँ पे डायनेमिक्स फ्रैक्शन 1 होगा। दूसरा स्टेज है कि ये सैचुरेटेड नहीं होगा, ये उससे पहले ही कंडेंसर के अंदर चला जाएगा। मान लो अगर ये पॉइंट नंबर 2 डैश हुआ, तो ये 2 डैश क्या हुआ, तो वेट कंडीशन के बाद में। अब ये देखो यहाँ पे 2 डबल डैश अगर मैं वर्ड यूज करूँ, तो ये क्या होगा, सुपर हीटेड वर्ड में हो जाएगा। ठीक है, तो तीन स्टेजेस होते हैं, जहाँ पे वो पहले सैचुरेटेड होता है,
और दूसरे स्टेज में ये वेट वेपर रहता है और तीसरे में सुपर हीटेड वेपर। इसी तरीके से ये जो लाइन है ये आपकी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो लिक्विड लाइन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को कन्वेंस उतना करना है जब तक जो वेपर है वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट, और जैसे ही वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसके बाद ही हम एक्सपांशन कर सकते हैं। अच्छा, लिक्विड के बाद अभी आप आगे भी पढ़ेंगे कि एक और केसेस आता है जिसमें हम लोग सब कूलिंग डिवाइस करते हैं। तो सब कूलिंग में क्या होता है, तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ से ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। अगर मैंने इस लिक्विड को थोड़ा सा ठंडा और कर दिया तो ये जो रीजन होता है जिसको मैं 3 डैश बोलूंगा, इसे बोला जाता है सब कूल रीजन। अब अगर सब कूल करने के बाद अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट था वो 1 से 4 जो था, अब वो 1 से 4 डैश गया, मतलब अल्टीमेटली रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बन। क्लियर है? चलिए, यहीं पे आपका अब सीओपी भी डिफाइन हो जाता है। सीओपी क्या होता है? तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला है कि व्हाट वी गेट डिवाइडेड बाय व्हाट वी पे। व्हाट वी गेट, हमें रेफ्रिजरेशन साइकिल से क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर कूलिंग इफेक्ट चाहिए। तो कूलिंग इफेक्ट कहाँ मिलता है, तो वो इवापोरेटर में मिलता है। तो इवापोरेटर में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा H1 माइनस H4। ओके, और व्हाट वे पे, इसके लिए हमने क्या किया, तो हमने ये पावर दिया कंप्रेसर को, तो अगर पावर कंप्रेसर को दोगे तो आपका पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा H2 माइनस H1। क्लियर है? क्या हुआ, सीओपी क्या होता है, तो पे व्हाट वी गेट डिवाइडेड बाय व्हाट वी पे। और अगर तुम यहाँ की लैंग्वेज की बात करेंगे तो हम बोलेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन बाय कंप्रेशन। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ प्रोड्यूस हुआ, तो H1 माइनस H4 में, और कंप्रेसर वर्क कहाँ किया, तो H2 माइनस H4। ये क्लियर हो गया? अब यहीं पे एक चीज और भी आता है, वो आता है 1 टन कितना होता है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम लोग समटाइम्स क्यू वर्ड भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्यू कितना होता है, तो एक्चुअली जब आप कैलकुलेट करोगे या थ्योरी करोगे तो आपको पता चलेगा कि 211 किलो जूल पर मिनट में अगर हीट उसने एज्यूम मतलब कंज्यूम कर लिया तो उसे बनेंगे 1 किलो। बराबर है? और इसको अगर शॉर्टकट फॉर्म में देखिए, न्यूमेरिकल में आप यूज करोगे 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, सॉरी किलो वॉट पर सेकेंड। बराबर है? किलो वॉट पर सेकेंड, मतलब आपको ये दोनों में से कोई एक यूनिट याद रखना है। अगर 211 डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो 3.5 आ जाएगा, या 3.5 को मल्टीप्लाई 60 कर दोगे तो 211। ठीक है, तब यहीं पे अब मास फ्लो रेट कुछ टाइम्स में निकालने के लिए, तो जब मास फ्लो रेट वाला पार्ट आएगा तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि आपका जो ये वर्ड है ना ये थोड़े से चेंज होगा। पहला जो है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो था वो टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन करते हैं। क्या वर्ड यूज किया, टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो जब टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन की वर्ड यूज करेगा तब आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला हो जाएगा एम इंटू टू H1 माइनस H2। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले पे जाओगे तो एक्चुअली ये टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया ये क्यू है, और क्यू की वैल्यू आपके पास इतनी देके रखी है, तो आपका अगर मास फ्लो रेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्यू अपॉन एम इंटू, सॉरी एम तो आपको निकालना है, ये फॉर्मूला हो जाएगा H1 माइनस H4। ठीक है, तो अगर मैंने 1 टन के लिए अगर ये वर्ड यूज किया, अगर 5 टन या 6 टन हो जाएगा तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, तो ये हो जाएगा 3.5। ये एक्चुअली 1 टन की है ना, तो 1 टन कितना होता है, तो 211 या 3.5, तो 3.5 क्यू अपॉन H1 माइनस H। ठीक है, या और क्या लिख सकते हैं, तो 211 इंटू क्यू अपॉन H1 माइनस H। आप बोलोगे सर ये दोनों में से कौन सा कब यूज करना है, तो अगर आप मिनट में निकालोगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और अगर आप सेकंड में निकालोगे तो ये फॉर्मूला यूज। ये है इसका डेरिवेशन। इतना क्लियर? अगर बाय डिफॉल्ट कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करिए। ओके, चलिए अब इसका वर्किंग प्रोसेस है।
तो वर्किंग प्रोसेस में आपने सबसे पहले क्या देखा, कंप्रेशन प्रोसेस, मतलब जो हमारा मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेंट था वो कंप्रेस हो रहा है और कंप्रेस होने के बाद कंडेंसर में हो रहा है। तो आपको क्या बोलना है, तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि प्रोसेस 1 to 2 इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बाय द कंप्रेसर टू द कंडेंसर प्रेशर। तो इनलेट में जो आपका कंप्रेसर है, मतलब इनलेट ऑफ कंप्रेसर लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर का है। कौन, जब आपने इवेपोरेटर से निकाला तो आपको पता है कि उसका प्रेशर भी लो है और टेम्परेचर भी लो है। और अब जब प्रेशर मतलब लो कंप्रेशर और लो टेम्परेचर की बात करें, मतलब मैं यहाँ से देखो, जब मैंने यहाँ पे रेफ्रिजरेंट को अंदर डाला तो वो लिक्विड के फॉर्म में था, और यहाँ जब बाहर निकाला तो वो वेपर के फॉर्म में। इसलिए उसने स्टेटमेंट दिया है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर, ठीक, coming from the evaporator enter the compressor. In the compressor, low pressure, low temperature vapor is isentropically compressed to the condenser pressure, and the condition of refrigerant at the exit is high pressure and high temperature. बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से कंडेंसर में जाओगे तो क्या होगा, तो जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में हो जाएगा। और आप यहाँ पे बताओगे कि ये नेचुरल कूलिंग होता है, ठीक। तीसरा क्या है, एडियाबेटिक एक्सपांसन टू द एक्सपांसन। एक्चुअली रिसीवर एक पार्ट है लेकिन वो प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए हमने वो रिसीवर वाला पार्ट डिफाइन नहीं किया। तो अब एक्सपांसन वॉल में क्या, तो आप बोलोगे कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर जब एक्सपांसन वॉल में जाएगा तो वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर हो जाएगा, और ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर जब इवापोरेटर में जाएगा तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा मगर प्रेशर लो होगा। क्लियर है, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। चलिए अब आता है आपका प्रेशर इंथैल्पी डायग्राम। एक्चुअली प्रेशर इंथैल्पी डायग्राम आपके रेफ्रिजरेंट के लिए होता है। अगर आप आगे हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। तो पहला रेफ्रिजरेंट कौन सा है, तो R11, R22, R134A, और उसके बाद वाटर, एमोनिया, ये सब जो है वो रेफ्रिजरेंट है जिसको हम लोग ने नाम दिया है, ठीक है। तो आपके जो न्यूमेरिकल्स आप देखोगे तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको पीएच चार्ट देखना पड़ेगा। तो जब आप न्यूमेरिकल्स के वक्त आओगे तो आपको पता चलेगा R22 लिखा हुआ है या R12 लिखा हुआ है। तो आपको एग्जाम के टाइम पे अपने ऑब्जर्वर को बोलना पड़ेगा कि सर R12 का या R22 का रेफरेंस मतलब पीएच चार्ट हमें प्रोवाइड करें। अब पीएच चार्ट होता क्या है, तो एक्चुअली पीएच चार्ट, ठीक है। अब इसको समझने आइए। सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब ऊपर का जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो क्रिटिकल होगा। अब क्रिटिकल से इस तरफ वाली जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और इसके जब इस तरफ जाओगे राइट हैंड साइड में जाओगे तो आपको ये याद रखना है कि इसे बोलेंगे सैचुरेटेड बर्नर लाइन। अब सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में क्या होता है, तो वो कम्प्लीटली लिक्विड के फॉर्म में होता है, और इस तरफ जाओगे तो वो कम्प्लीटली वेपर के फॉर्म में होता है। क्लियर। अब इसके बीच का जो जोन रहता है ये जोन रहता है वेट वेपर रीजन। वेट वेपर रीजन मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे आया तो x की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ से x की वैल्यू पॉइंट पॉइंट 001 002 ऐसे बढ़ते 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 यहाँ तक आएगा। मतलब इस सैचुरेटेड लाइन से पहले तक रहेगा एक्स की वैल्यू 0.9 या 9.91929399, और जब ये लाइन पे आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि ये सैचुरेटेड वेपर लाइन। मतलब ये लाइन पे आने का मतलब ये हुआ कि जो ड्राई सैचुरेटेड है मतलब ड्राइनेस क्वेश्चन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद आप इसके बाद वाला जो लाइन है मतलब ये सैचुरेटेड लाइन के बाद का जो रीजन होता है उसे हम लोग सुपर हीटेड वेपर रीजन बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और ये जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है इसके बाद का जो रीजन रहता है उसको सब कूलिंग लिक्विड रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको याद है आपको बोला था कि इसके बाहर आओगे तो सब कूलिंग रीजन चालू हो जाएगा। तो सब कूलिंग का मतलब क्या हुआ, हमने रेफ्रिजरेंट को और ठंडा किया, और ये ठंडा होने की वजह से क्या होगा, आपके रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। चलिए अब ये जो चार्ट है ये चार्ट किसका है, तो पीएच चार्ट है। मतलब आपको ये पता है कि वर्टिकल में आपके पास प्रेशर रहेगा और
हॉरिजॉन्टल में आपकी इंथैल्पी रहेगी। ठीक, तो आपके पास मतलब ये देखो, ये जो वर्टिकल के परपेंडिकुलर लाइन रहेगी इसे मैं बोलूँगा कांस्टेंट प्रेशर लाइन। यहाँ होगी, यहाँ मतलब ये जो फ्लो करेगी वो आपके प्रेशर लाइन होगी। उसी तरीके से जब मतलब ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके जो परपेंडिकुलर रहेंगी इसे बोलेंगे कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन। ये देखो ये लिखा मतलब ये वाले को इसने डिनोट किया, तो ये जो लाइन आएगी ये कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन। अब इसी इंथैल्पी और प्रेशर के बेसिस पे आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में एक और वर्ड याद रखिएगा, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन क्या कहता है, तो एक्चुअली जब आप न्यूमेरिकल्स करने जाओगे ना या डेरिवेशंस करने जाओगे तो आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि जितना कम वॉल्यूम रहेगा आपकी सिस्टम की इफिशिएंसी उतनी ज्यादा। तो अगर बाय डिफॉल्ट आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि वेपर मतलब अगर सिस्टम में वॉल्यूम किसी का ज्यादा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा है, तो आप तुरंत बोल देंगे कि सर CO2 उसका कम होगा। जितना कम वॉल्यूम रहेगा उतनी ज्यादा उसकी CO2 रहेगी। ठीक है, ये पीएच चार्ट समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अब आपका VCR सिस्टम का ये पीएच चार्ट आपको याद रखना, क्योंकि इसी बेसिस पे आप आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमेशा जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जब तक पॉइंट 1 पे नहीं आ जाएगा, मतलब वो केसेस हैं कि वन अलग अलग भी जाता है, मगर आपको ये याद रखना है कि जब आपकी ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होगा तो उस पॉइंट को हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अब 1 से हमने उसको कंप्रेसर में डाला, तो कंप्रेसर में जब आप इसका पीएच चार्ट देखोगे तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि आपका पीएच चार्ट इस तरीके से फ्लो करेगा। तो न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स दो टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा होता है जहाँ पे प्रेशर दे के रखा हुआ है, तो आपको पता चल गया है कि केवल दो ही प्रेशर पे काम होता है, तो आपने क्या किया, पहले एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन खींच दी। और दूसरा होता है टेम्परेचर बेसिस पे। टेम्परेचर कहाँ होता है, तो वो यहाँ पे लिखा होता है, मतलब यहाँ पे -10 डिग्री, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50 करके ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो इस बेसिस में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया कि क्या किया। मान लो अगर प्रेशर बेसिस पे दिया है तो आपने ये जो सैचुरेटेड लाइन है इसके बीच में आपने दो प्रेशर लाइन खींची। अब दो प्रेशर लाइन खींचने के बाद आपको पहले पता है कि सैचुरेटेड लाइन से ही आपका नंबर 1 स्टार्ट होगा, तो आपने क्या किया, नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट किया और इससे मूव ऑन करना चालू किया। अब ये मूव कैसे करेगा, तो वो आपको पीएच चार्ट में बताना होगा। अब ये और ये लाइन जहाँ पे स्ट्राइक करेगी वो पॉइंट आपका नंबर 2। अब 2 लाइन जो है जब वो कंडेंसर में जाएगा तो कंडेंस होगा, मतलब पूरा का पूरा उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होना है, तो वो जहाँ पे सैचुरेटेड वाली लाइन से स्ट्राइक करेगा उस पॉइंट को हम लोग नंबर 3 देंगे। अब नंबर 3 को जैसे ही नीचे की ओर मूव करोगे और ये जहाँ पे उसको स्ट्राइक करेगा मतलब कॉन्साइड करेगा वो नंबर आएगा हमारा नंबर 4। ठीक, अब आपके पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का है। और जब ये लाइंस को आप नीचे की ओर बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे की ओर लेके आओगे तो आपको उसकी इंथैल्पी मिल जाएगी H1, H2 और K and H4। यहाँ पे देख लो Sp और H4 दोनों को। तो आपका जो COP का फॉर्मूला बना वो जो फॉर्मूला है वो आप यहीं से डिराइव कर लोगे। क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4 फॉर्म H2 माइनस H3, सॉरी H2 माइनस H1। अब ये वैल्यूज को यहाँ से डाल दोगे, अल्टीमेटली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, वो मैं सेकेंड लेक्चर में बताऊंगा। आप भी के लिए इतना ही था। थैंक यू।